Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, now we are focusing on 2021 examinations. And we are taking 6 exams in focus to prepare from day one. Now, some of you are asking, sir, I always clear pre. I want to simply prepare for mains. Should I attempt the mocks of May? My answer is no. What we are trying to do, we are building our foundation and then we will construct building over it. This is the process. Most people, they lose the examination because they always try different methods but rarely concentrate on their fundamental weakness. The moment you are able to identify your fundamental weakness and remove those weaknesses, you will be successful. So people, those are not in position to clear the exam time and again, I observed one of the feature common in all these candidates, that they are preparing but preparing in wrong direction. So purpose of my daily videos is to develop a habit and find the weakness and improve upon that. So it is always advisable if you will go step by step. Another important question asked by many candidates is, sir, I am having this mock test. Should I buy recommended by you or continue with that? Whatever material you are having, that is your choice. But I will still advise that you must buy the mock test recommended by me. This is going to help you tremendously and you will compliment me after using it. Thousands of our subscribers are now using this mock test and able to achieve good progress in their preparation. And many of them have already cleared the examination and now they are sitting in banks, insurance company, other sector. So this is my advice. I have suggested you a good quality mock test as well as reasonably priced. So I will definitely ask you to take it. Take annual plan. The annual plan is reasonably priced at 599 rupees. Its cost is coming just 50 rupees a month, which is very, very reasonable, 2 rupees a day. And you are having access to large number of exams in this, all banking, insurance, SSC, then railways. So it is advisable to go for it. Because we are planning all our lectures, study plans based on the mock test contained in that. So we will be on the same wavelength. What I am telling and what you are using will be similar. So it will help you. So today we will focus on one examination. We are focusing one exam daily. So today focus is IBPS PO. In IBPS PO, you will attempt the 5th mock test from 2020 series. So in the mock test, you will have 2020 series and 2021 mocks also. At present, there are 2020 mocks. Very soon, you will start getting 2021 mocks also one by one. Not in a one package you will get all the mocks together, but they will be releasing gradually. So by the examination comes, we will be having both the sets. So right now we are using 2020 sets to have and start our preparation. So after attempting the 5th mock test, you will be able to know where you are lacking. This is called identification of weakness. So the first thing you will do, attempt a mock test. And the mock tests are to be attempted on alternate day. Yesterday I made it very clear. I am suggesting you mock test on daily basis. But you have to pick those examinations where you have to appear.
or you should use the alternate day videos for your preparation, because if you are attempting the mock test today, identification of weaknesses today, then you should spend 1.5 day on preparation of those aspects that you have identified as weakness. So mock test link is available in description and comment column. By using the link you will subscribe, then you will attempt the fifth mock test from 2020 series. Now the moment identification of your weak area is complete, make your timetable, distribute your time into 5 parts. 3 parts will be, one part is English, second part is quant, third part is reasoning, fourth part is current affair, and fifth part is banking, financial and economic awareness videos. So the moment you are able to make this timetable, 1 to 2 hours for English, half an hour rest, and so on. Now what is to be done during these hours? You have identified your weakness. From where this weakness will be removed? From elementary books, school level books. For English, a grammar book can be helpful. I have told you to go through grammar book, high school grammar book by Wren and Martin, W-R-E-N and M-A-R-T-I-N. This is the very, very good book, recommended at school level in most of the schools in India. So if you go through this, it is a good quality book, and you can have PDF on the Google search also if you search it. Then for quantitative aptitude, the first and foremost thing is your foundation. Foundations of various formula and systems. And this foundation you can achieve by reading the school level books, that's it, NCERT books, CBSE books, the books that is recommended at school level. That is the best source, because in less time you can understand. There is no need of solving the questions there. The purpose is to read the methods, read the formulas, read the concepts, so that the gaps that I am having are filled. Then reasoning, understand the type of questions you are not able to solve and how to solve those type of questions. Understand that mechanism, and such PDFs are readily available on Google search. So this should be your methodology. Then give rest of half an hour, and then you should come to current affairs. Now this is the most common error by people. Either they are reading one-liner, or they are reading capsules, or they are asking frequently asked questions, or they are preparing from newspapers, or they are preparing for any free material that is available. So what happens is, there is no systematic way of preparation of current affair, or they are spending very less time after clearing the pre. So the best way is prepare current affair on regular basis. So you should have a good source, a source which is exhaustive in nature, so that you can prepare current affair on regular basis. And that's why we have found a good source from where many questions have come in previous examinations. So you can subscribe this current affair. It's very reasonably priced. I have provided you the link of this current affair in the description columns. The moment you click that link, you will land up on a page, and there you will find, I have marked it by yellow, a app link. Simply download that app. And I have also given the name of the app in the link. You can download from the Play Store also. So after downloading the app, you should buy 2021 plan, that is in English and Hindi, and apply coupon code AA03. You will get 10% discount. So the moment you have access to 2021 plan, you will be able to see the current affair from January 21 onwards. So read detailed material, that is monthly material for January, for February, and daily material for March. That should be your way of preparation. Then give gap of half an hour, and then move to banking, economic
and financial awareness. These videos are available in the shape of playlist on the home page of this channel. So the moment you go to the home page, you will find this playlist, click the link and develop a habit of watching 10 videos per day. It is going to enormously help you in general awareness, interviews and all your preparation for banking and insurance exams. So follow this schedule. So there are two different links in the description. One is for mock test. So mock test is different. Mock test contains all the papers and all the exams. And another link is for current affairs. So these are two different sources. Even in mock tests also current affair is available. So by adopting these two sources, you are having current affair from two sources. One from the mock drill of mock test, and second is the exhaustive source which I am giving you in the second link. So there are some confusion with some candidates. I am making it very clear. And the coupon code is only for current affairs, not for mock test. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब 2021 के 6 एग्जाम के ऊपर हम तैयारी कर रहे हैं. अब 6 एग्जाम को हम फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर रोज हम एक एग्जाम को फोकस करते हैं और इसमें से आपने डिसाइड करना है आपको कौन से एग्जाम देने हैं. आप सारे दे रहे हैं तो अल्टरनेट डे की मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे, और अगर आप इसमें से सेलेक्टिव कर रहे हैं तो उसी जो मैंने डिटेलिंग करी है उसको नेक्स्ट वीडियो तक आपने इम्प्लीमेंट करना है, चाहे 2 दिन 3 दिन, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितने एग्जाम्स पिक किए. कुछ लोगों की क्वेरी है कि सर मेरा प्री तो क्लियर हो जाता है, आप प्री की तैयारी करा रहे हो, मुझे मेन करना है. ये गलती आपने नहीं करनी है. कई बार हमें लगता है प्री क्लियर हो गया, मेन नहीं हुआ, मुझे मेन की कुछ अलग से तैयारी करनी. नहीं, अगर आपका मेन नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि आप अपनी फंडामेंटल वीकनेस को नहीं ढूंढ पा रहे हैं. तो ये जो हमारा एक्सरसाइज है, ये आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज है. ये कोई प्री की तैयारी या मेन की तैयारी नहीं है. जो हम मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, इसमें हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि कोई कैंडिडेट क्यों बार बार फेल हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी कमी है, वो ढूंढ नहीं पा रहा है और उस कमी के साथ बार बार अपीयर हो रहा है और बार बार फेल हो रहा है. जैसे ही हम ये कमी ढूंढ लेते हैं और इस कमी को प्लग कर देते हैं, हम सक्सेसफुल कैटेगरी में आ जाते हैं. आपने देखा होगा कि जिसका भी एग्जाम पास हो रहा है, एक नहीं हो रहा, सारी सिलेक्शन हो रही है, उसके पास चॉइस है. वो कहता है सर इसमें जाऊं कि सर इसमें जाऊं. तो एक तरफ वो कैंडिडेट है एग्जाम पे एग्जाम दे रहा है, पास नहीं हो रहा. दूसरी तरफ वो कैंडिडेट है जो भी वो एग्जाम दे रहा है, पास हो रहा है. इन दोनों में फर्क क्या आ रहा है? जो एक कैंडिडेट है अपनी वीक एरिया को नहीं ढूंढ पा रहा है और दूसरे ने उस वीक एरिया को ढूंढकर प्लग कर दिया. अब वो कामयाब वाली लिस्ट के अंदर आ चुका है. सेम सेट ऑफ कैंडिडेट हर एग्जाम में बैठ रहे हैं, उसी तरह से सिलेक्शन हो रहा है. तो हमें सक्सेसफुल वाली कैटेगरी में मूव करना है. इसलिए यदि हम सिस्टमेटिक वे से अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके प्लग कर लेते हैं तो हम कामयाब हो सकते हैं. तो इसीलिए हम बहुत फंडामेंटल से स्टार्ट कर रहे हैं और ग्रेजुअली हम मेन को कवर करेंगे. जंप मत करिए. ये जो हमारी एंजाइटी होती है, हम जंपिंग करते हैं, शॉर्टकट ढूंढते हैं, इजी प्रोसेसेस ढूंढते हैं, उससे सक्सेस नहीं मिलती है. जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट होती है, ये हमें सक्सेस की तरफ लेके जाती है. तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर मॉक टेस्ट. कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मेरे पास एक पर्टिकुलर मॉक टेस्ट है, क्या फिर भी मैं ये ले लूं? मेरा आंसर होता है हाँ, आपके पास जो भी मॉक टेस्ट है आप रखिए उसको, पर इसको आप जरूर लीजिए, क्योंकि हम इसको बेस बना के पढ़ाई कर रहे हैं. तो आप और हम एक ही वेवलेंथ पे होंगे. जो मैं बात कह रहा हूँ वो आप समझ पाएंगे, लागू कर पाएंगे. तो इसको आप ले लीजिए, रीजनेबली प्राइस्ड है और अच्छी क्वालिटी का है. एनुअल प्लान लीजिए, इसका 599 में 50 रुपये महीना से कम आपको प्राइस पड़ रही है. 2 रुपये रोज भी कीमत नहीं आ रही है. और सारे बैंक के, इंश्योरेंस के, आपको एसएससी, रेलवेज मॉक इसमें मिल रहे हैं. और इसको हम बेस लेके चल रहे हैं. तो जो मैं सिस्टम बताऊंगा वो आप लागू कर पाओगे. तो हम एक ही वेवलेंथ पे होंगे, उससे सबको आसानी होगी.
और जिन लोगों ने ये कहना माना है उनको फायदा हुआ है, हजारों की तादाद में लोगों को फायदा हुआ है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट कॉलम में दे दिया। इस लिंक से रजिस्टर कर लो। रजिस्टर करने के बाद आप इस मॉक टेस्ट को यूज करना शुरू कर लो। अब इसमें 2020 के भी मॉक हैं, 2021 के भी हैं, प्री के भी हैं, मेन के भी हैं। तो अभी हम प्री वाले मॉक 2020 के यूज कर रहे हैं, फिर हम 21 के यूज करेंगे, उसके बाद फिर हम मेन पे आएंगे। तो 2020 वाले में से 5वां मॉक टेस्ट आज आपको अटेम्प्ट करना है IBPS PO से। तो आज का हमारा फोकस है IBPS PO। तो IBPS PO 2000 का मॉक टेस्ट, 5 नंबर मॉक टेस्ट आपने अटेम्प्ट कर लिया। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता लगेगा मैं कौन से क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, कौन से नहीं कर पा रहा हूँ, कौन से सही हो गए, कौन से गलत हो गए। कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इन टॉपिक्स को कॉपी पे नोट करना है। कुछ लोग एनालिसिस में बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसको टाइम को बचाइए। ये हमारा टूल है डायग्नोज करने का कमी का है, और फिर हमने इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमने अपनी कमियां ढूंढ ली, इंग्लिश में कमियां ढूंढ ली, क्वांट में कमियां ढूंढ ली, रीजनिंग में कमियां ढूंढ ली। अब जो भी मेरा अवेलेबल टाइम है उसको 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। मान लो मेरे पास 10 घंटे हैं रोज के, तो 2-2 घंटे के 5 स्लॉट बना लेंगे। 5 घंटे हैं तो 1-1 घंटे के बना लेंगे। 3 घंटे हैं उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लीजिए। कई लोग कहते हैं सर मैं वर्किंग हूँ, मैं क्या करूँ? तो अगर आप वर्किंग है, आप देखो आपके पास कितने घंटे हैं, उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लीजिए। मतलब पर्पस है रेगुलर स्टडी। जितने आवर्स हैं उसको मैं एक्सपेंड नहीं कर सकता, जो भी मेरे पास अवेलेबल है उसको मुझे यूटिलाइज करना है। अब हमने ये टाइम टेबल बना लिया। इंग्लिश के अंदर ग्रामर बुक की मदद लीजिए। मैंने अच्छी एक ग्रामर बुक आपको रिकमेंड की है, रन एंड मार्टिन, WREN एंड MARTIN। ये स्कूल लेवल पे पढ़ाई जाती है किताब। हाई स्कूल ग्रामर बुक ये ले लीजिए, गूगल सर्च में भी आपको मिल जाएगी और आसपास के किसी बच्चे के पास भी मिल जाएगी, और आपके पास भी हो सकता है ये पढ़ी हुई हो। इसका सहारा लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट इंग्लिश के अंदर आएगी। इसके बाद क्वांट के लिए हमारे कई बार होता है कि सर मुझे कंसेप्ट तो क्लियर है, मुझे तो जो टफ क्वेश्चन है वो नहीं कर पा रहा। वो भी आप कर पाओगे। देखो आप टफ क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल्स की कमी है। कुछ फार्मूले शायद हमें नहीं आते, हो सकता है कि कोई चीज़ हम स्कूल लेवल पे पढ़ना भूल गए हो, अब पढ़े हैं तो अभी तक याद ना आ रहा हो। तो जब हम स्कूल लेवल की किताब पढ़ते हैं, वहाँ से इन फार्मूलाज को पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी रिवाइज हो जाती हैं, और जब ये रिवाइज हो जाती हैं तो ये हमारे एग्ज़ाम में काम आती हैं। तो इसलिए जो भी आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, जो मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं कर पाए, मिक्सचर का नहीं कर पाए, परसेंटेज का नहीं कर पाए, वो वाला कंसेप्ट कौन से स्कूल लेवल की किताब में कवर्ड है, वहाँ से आपने पढ़ना है। और प्रेफर करना है CBSE की किताब हो या NCERT की किताबें हो, और आराम से गूगल सर्च में आपको फ्री मिल जाएंगी, खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप सर्च करेंगे आपको सब चीज़ मिलेगी। इसी तरह रीजनिंग में किस तरह की रीजनिंग नहीं कर पा रहे वो करना है। अब आपने ये 3 सब्जेक्ट कवर कर लिए। इसके बाद हमने शुरू से अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी रखनी है। करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो हर एग्ज़ाम में काम आती है। अब कई लोग न्यूज़पेपर से करते हैं, कहीं फ्री सोर्स से करते हैं, कहीं किसी से करते हैं। तो क्या होता है कि हमारा टाइम तो बहुत लग जाता है मगर मटेरियल कुछ नहीं मिल पाता। कहीं वन लाइनर से कर लेते हैं, कोई कैप्सूल से कर लेता है। अच्छा रहता है कि करंट अफेयर को हम एग्जॉस्टिव तैयार करें। एग्जॉस्टिव के लिए एक अच्छा सोर्स होना चाहिए, क्योंकि जितने भी सोर्स हैं वो न्यूज़ को ही तो इकट्ठा कर रहे हैं। तो सोर्स जब आपको एक अच्छा मिल जाएगा जो पूरी न्यूज़ को एक जगह अच्छी ढंग से प्लेस करके दे रहा है, तो आपको आसानी होगी, आपका टाइम बचेगा। तो हमने एक सोर्स ढूंढा जिससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले एग्जाम्स के अंदर, उसका लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। जब आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो आपको यू लैंड अप ऑन ए पेज। वहाँ पे आप देखेंगे येलो से मार्किंग करके कुछ लाइनों को हाईलाइट किया गया, वहाँ पर ऐप का लिंक है, उसको क्लिक कर दीजिए। आपके ऐप डाउनलोड हो गई। ऐप डाउनलोड करके 2021 का जो करंट अफेयर का हिंदी और इंग्लिश वाला वर्जन है वो प्लान आप क्लिक कर दीजिए।
वहाँ पर वो कूपन कोड मांग रहे हैं आपसे। कूपन कोड में आप AA03 फिल कर दीजिए, उससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको एक रिजनेबली प्राइस 1 साल की एक्सेस मिल जाएगी करंट अफेयर की। और जनवरी से आप करंट अफेयर 2021 से आपको मिल गई। अब ये अगर हम एग्ज़ाम देखें तो हमारा नवंबर के अंदर ये एग्ज़ाम है। अब हम जनवरी से पढ़ लेते हैं करंट अफेयर, 11 महीने की करंट अफेयर हमारी तैयार हो गई। कई बार लोग कहते हैं सर आप 8 महीने की कह रहे हो, 6 महीने की कह रहे हो, कैसे तैयार होगी? इसलिए नहीं तैयार होती क्योंकि हम 1 महीने में 6 महीने की करना चाह रहे हैं। पर यदि हम रोज तैयार करेंगे तो ये हमें 11 महीने मुश्किल नहीं लगेंगे। कुछ लोगों को लगता है याद कैसे रखें, ऐसा कुछ नहीं करना है, याद रखने की कोशिश करना है। हमने पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और दिमाग में ये क्षमता है कि जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा तो अगर हमने कुछ पढ़ा हुआ है तो वो वहाँ पर मैचिंग करने में कामयाब हो जाता है जो गिवन ऑप्शंस दिए, क्योंकि आंसर तो वहाँ दिया होता है। तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि हमें अपने आप से लिखना है, कोई डिस्क्रिप्टिव है ये। तो ये जो हमें लगता है कि हम भूल रहे हैं, हमें याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब एग्ज़ाम होता है तो आपका क्या है कि एक डेटा आपके दिमाग में है और एक डेटा सामने स्क्रीन पे है, इसकी मैचिंग होनी है। तो यदि मैंने कोई चीज़ पढ़ी है और बार बार पढ़ी है तो ये मेरे डेटा में स्टोर्ड है, तो जैसे ही स्क्रीन पे ऑप्शन आएगी तो वो वहाँ से सर्च करके जरूर चुनने में कामयाब होता है दिमाग कि इसमें कौन सी राइट ऑप्शन है। तो ज़्यादा टेंशन मत लो कि कई लोगों को लगता है सर पढ़ते जाते हैं भूलते जाते हैं। हाँ ऐसा लगता है, पर एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता। हमने देखा है बहुत लोग 80% 90% ऑप्शंस वहाँ टिक करने में कामयाब हुए हैं जो रेगुलर पढ़ते रहे। और ऐसे भी लोग हैं जो 10% भी आंसर नहीं कर पाए, 20% भी आंसर नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने वो पढ़ा ही नहीं हुआ था। क्योंकि करंट अफेयर के अंदर कोई इंटेलिजेंस के बेस पे आंसर नहीं दे सकते आप। IQ लेवल के क्वेश्चन नहीं है ये, वो तो रीजनिंग में टेस्टिंग हो रही है। करंट अफेयर में तो कोई चीज़ पढ़ी है तभी तो आप बता पाओगे वो क्या है, पढ़ना जरूरी है। तो इस चीज़ को समझना। इसके बाद आधे घंटे का रेस्ट दे दीजिए और फिर आइए बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस वीडियोज़ पे। जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक अवेयरनेस वीडियोज़ हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको इसके होम पेज पे दे दिए। होम पेज पे प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ चले जाइए, 10 वीडियो रोज की देखिए, इस तरीके से तैयारी करिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। क्योंकि अगर मैं इम्प्रूवमेंट करता जाता हूँ तो मैं भी उन लोगों में शामिल हो जा सकता हूँ जिनको ये जॉब मिल रही है। गॉड ब्लेस यू ऑल।